गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 के विद्यार्थियों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग किस तरह से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं, किस तरह से उसकी पढ़ाई हो रही है। और मैंने सेट रिलेशन फंक्शन, फिर इसके बाद प्रपोजिशनल कैलकुलस के बारे में बातचीत की थी। लास्ट वीडियो मेरा बुलियन अलजेब्रा पे शुरू किया था। हमने कल बुलियन अलजेब्रा के बारे में बातचीत की थी। तो सबसे पहले बुलियन अलजेब्रा के बारे में, लेट बी बी ए नॉन एम्प्टी सेट and there is binary operations plus and multiplication, addition and multiplication with identity 0 and 1 and complementary function. So it is given by b comma plus multiplication complementary 0 and 1, and it is denoted by b for set plus addition, dot means multiplication, dash means complementary, 0 means हमारे पास identity relation 0 and 1 is multiplication identity relation. These are this structure, this algebraic structure is known as binary, is known as Boolean algebra if first property commutative if first relation is commutative law for addition and multiplication, means a plus b is same as b plus a. Second is a dot b is same as b dot a for all a and b is belonging to b. Second property, also distribution law is a plus b, first a plus b dot c is equals to a plus b dot a plus c, and second condition a dot b plus c is equals to a dot b plus a dot c. This is distribution. Then third, this is distribution law. Third, identity law. Identity law is given by first property a plus 0 is a, second property a dot 1 equals to a. This is your identity law. And fourth is complementary law. Complementary law is given by a plus a dash equal to 1 and a dash equals to 0, and fifth one is 0 is not equal to 1. This is the main definition of Boolean algebra. A algebraic structure or a set
मैंने इसको सेट से स्टार्ट किया है, लेट बी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड देयर इज ए बाइनरी ऑपरेशन in addition and multiplication which is given by plus and multiplication symbol, and the identity element of 0 and 1. Identity element of 0 is means this is the addition for addition and 1 is addition for multiplication. So and the complementary function also, then it is denoted by this. This is known as algebraic structure. This is denoted by algebraic structure. This is algebraic structure is known as this. So this algebraic structure is known as a Boolean algebra. This algebraic structure is known as a Boolean algebra. ये बुलिय गणित कहलाता है, बुलिय बीजगणित कहलाता है यदि पहली कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम में हम जानते हैं कि a plus b is same as b plus a, and second is a dot b equals to b dot a. Then second property distribution, बंटनता का नियम, a plus b dot c equals to a plus b dot a plus c, and second a dot b plus c is equals to a dot b plus a dot c. Then third property is identity law. Identity law means this is addition property, a plus 0 equals to a, and multiplication property a dot 1 equals to a. And complementary पूरकता का नियम, a plus a is equal to 1 और a dot a is equal to 0 और 0 is not equal to 1. दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इस बीजीय संरचना को हम बुलियन अलजेब्रा कहलाते हैं यदि ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये वाला सेट। और इसको सिंबल इस तरह से दिया है, बी इज एन नॉन एम्प्टी सेट, प्लस एंड डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन, दीज आर द बाइनरी ऑपरेशन। ऊपर का जो डैश दिया गया ये पूरक फलन कहलाता है, 0 और 1 आइडेंटिटी फंक्शन है। अब हम इसको प्रूव करेंगे एन एग्जाम्पल। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी हमें सेट दिया हो और उस पर ये पांचों प्रॉपर्टी अगर लागू होती है तो ये हमारा बुलियन अलजेब्रा कहलाता है। बुलियन फंक्शन को हम बुलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। Let us suppose an example which is given by the conditions हमें given है। Let us suppose an example कि B is set of all positive integers and divisors। BB, let B be the set of all positive integers and that are the divisor that are the divisors of the integers. That are the integers 30 and let the operations plus and dot on B plus and dot on B are defined as follows. First, a plus b equals to c, a dot d equals to d. Where c is LCM of AB and where D is SCF of A and B. ये given है, this is the definition. And also आगे again given है, also let for each element A belongs to B, A dash equal to 30 by A.
a dash belongs to a and a dash equals to 30 by a. ये गिवन हमें 30. ये क्वेश्चन क्या है? लेट बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. लेट बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. मतलब हमारे पास धनात्मक पूर्णांकों का एक समुच्चय है b और हमें दो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों दिए हुए हैं और डिवीजर ऑफ 30. डिवीजर ऑफ 30 देखिए 30 के भाजक. डिवीजर ऑफ 30. डिवीजर ऑफ 30 का मतलब 30 के भाजक. और कौन से हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. तो वो नंबर जिसमें हमें जिसमें 30 में जिस संख्या का भाग जा सके. तो जैसे हमारे सबसे पहले तो b को हम एलिमेंट्स देखें. सबसे पहले b के एलिमेंट देखिए. b में हमारा देखिए 1 का भाग जाता है 30 में, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का नहीं, 5, 6, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का नहीं, 10 का नहीं, 10 का, फिर 11 का नहीं, 12 का नहीं, 13 का नहीं, 14 नहीं, 15, फिर 30. दीज आर द एलिमेंट ऑफ बी. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो आपके पास एलिमेंट ऑफ बी देखिए 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30. ये हमारे पास एलिमेंट्स होंगे बी के. बिकॉज वी हैव गिवन, हमें क्या गिवन है? दीज आर divisible divisors of. These are divisors of 30. These are the divisors of 30. 30 के डिविजर्स हैं. सो 30 के डिविजर होने का मतलब ये है कि हमारे पास ये नंबर्स होंगे जिनमें हमने 30 में भाग जा सके. अब हम एक टेबल बनाएंगे. टेबल कैसी होगी? हमें टेबल की डेफिनेशन ये गिवन है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. सो नाउ हम पहले प्लस के लिए टेबल बनाएंगे. ये नंबर्स होंगे. हम पहले प्लस के लिए टेबल बनाएंगे और ये नंबर्स हम लिखेंगे. सबसे पहले जो गिवन है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30. फिर इधर भी लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. These are the numbers. मैं एडिशन की टेबल बना रहा हूं और इसको आपको समझना है ध्यान से. ये हमारी टेबल है. अब एडिशन के लिए हमें गिवन है. ये देखिए a plus b equals to c, where c is equals to LCM of a and b. ये हमें डेफिनेशन दे रखी है फॉर एडिशन. योग के लिए हमें ये परिभाषा दे रखी है कि a plus b एडिशन इक्वल्स टू c, where c is the LCM of a plus a and b. मीन्स ये हमारे पास a एलिमेंट है. यदि अपने पास a एलिमेंट और b नीचे की ओर एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट मुझे किसके लेने हैं? इस b के लेने हैं. b के एलिमेंट लिए मैंने, तो a के हमारे पास एलिमेंट ये है, b के एलिमेंट आपके पास ये है. अब इन दोनों को ऐड करें और जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या करेंगे? जैसे 1 और 1 उसका एलसीएम वो 1 होगा, वो c की वैल्यू होगी. जैसे 1 और 1 इनका एलसीएम 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 6 का एलसीएम 6, 1 10 का एलसीएम 10, 1 15 का एलसीएम 15 और 1 30 का एलसीएम 30. एंड 2 1 का अगेन देखिए, 2 1 का 2, 2 2 का अगेन 2, 2 3 का एलसीएम 6, 2 5 का एलसीएम 10, 2 6 का 6, 2 10 का 10, 2 15 का 30 और 2 30 is again 30. तो these are the LCMs. क्योंकि ये C के मान है. वेयर हम क्या कर रहे हैं? A और B ये टेबल से हम देखें तो A के एलिमेंट ये वाला एलिमेंट है और B के हमारे पास ये वाला एलिमेंट है. इन दोनों एलिमेंट को लेके और हमें एलसीएम लेना है. एलसीएम क्या लेना है? इन दोनों एलिमेंट को लेते हुए इनका एलसीएम लेना है. जैसे 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का 3, 3 5 तो ये हो गया 15, 3 6 का 6,
310 का 30, 315 का 15 और 330 is again 30. These are the LCMs. 5 1 का 5, 5 2 का 10, 5 3 15, 5 5 5, 5 6 का 30, 5 10, 5 और 10 का होगा हमारे पास 10, 5 and 15 का 15 और 5 30 का 30. अगेन देखिए 6 1 का 6, 6 2 का 6, 6 3 का 6, 6 5 का 30, 6 6 is 6, 6 10 is 30, 6 15 is 30 और 6 30 is again 30. Then 10 से देखें 10 1 10, 15 और 30 ये होंगी. 10 1 is 10, 10 2 is 10, 10 3 is 30, 10 5 is 10, 10 6 is 30, 10 10 is 10, 10 15 is 30 और 10 30 is 30. 15 का देखें 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 LCM. 15 3 का 30, 15 5 is 30, 15 6 is again 30, 15 10 is 30, 15 15 is 15 और 15 30 is 30 LCM में. एंड 30 से देखेंगे तो 31 30, 30 इसका भी 30, इसका भी 30, 30 30 30 और 30. आप चेक कर लीजिए ये इस किसकी परिभाषा है, ये एडिशन की परिभाषा है. हम इस एडिशन की प्रॉपर्टी से ये टेबल बना रहे हैं. एडिशन की प्रॉपर्टी से इस डेफिनेशन को यूज किया है, फर्स्ट डेफिनेशन को, कि a प्लस बी इक्वल्स टू सी, वेयर c इज द एलसीएम ऑफ a एंड b, वेयर c इज द एलसीएम ऑफ a एंड b. अब ये जो टेबल है, इस टेबल में आप देखिए जैसे पहला हमारे पास क्या प्रॉपर्टी थी, कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमय. बुनियाद अलजेब्रा की पहली प्रॉपर्टी हमारी क्रम विनिमय. फर्स्ट प्रॉपर्टी थी a प्लस बी इज सेम एज b प्लस a. सेकंड इज a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a. तो फर्स्ट एडिशन के लिए देख रहे हैं, तो एडिशन में आप देखें जैसे मान लीजिए 6 प्लस 5 का जो अपने पास है एलसीएम, 6 प्लस 5 का एलसीएम 30 है, तो 5 प्लस 6 का एलसीएम भी 30 होगा. मतलब c का मान सेम होना चाहिए इस प्रॉपर्टी में. दिस इज इक्वल्स टू c मान के बराबर होना चाहिए. ये हमारी एडिशन प्रॉपर्टी है. अब फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट देखूं मल्टीप्लिकेशन, तो मैं आगे इसको मिटा के मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाता हूं. तो मल्टीप्लिकेशन टेबल में देखिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल में हमारे पास एलिमेंट वही होंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 5 6 10 15 and 30. 1 2 3 5 6 10 15 and 30. अब हमारे पास क्या है कि इसमें आपको क्या देखना है, इसमें ये देखना है मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी, a into b equals to d, where d is the SCF of a and b, where d is the SCF of a and b. अब आपको क्या करना है, a एलिमेंट हमारे पास मान लीजिए ये वाले एलिमेंट a है अपर वाले, और b वाले ये वाले एलिमेंट है, इन दोनों के बीच SCF देखना है, SCF of a and b, which is equals to हमारा a and b के बीच में SCF होगा वही, which is equals to a into b, this is your d. ये अपने पास मान आएंगे. तो इसमें 1 1 का 1, 1 2 का 1 1 1 1 1 1 1 SCF. हम जानते हैं कि SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की फॉर्म में. अब जैसे 2 1 का 1, 2 2 का हमारा 2, 2 3 इज 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा 1, 1 2 ये 1 1 1, इसमें 2 हो जाएगा, जिसमें डिवाइड हो जाएगा उसमें 2, इसमें डिवाइड नहीं होगा उसमें 1. देखिए इन दोनों में 2 2 का 2, फिर 2 3 का 1, 2 5 1 जिसमें डिविजन नहीं है, 2
2 और 6 में 2, 2 और 10 में 2, 2 15 में 1 और ये 2। सिमिलर वे में आप इसको लिखिए तो ये 1 1 1 1 1 1। अब अपन 3 2 में 1, 3 3 में 3, 3 5 में 1, 3 6 में 3, 3 10 में 1, 3 15 में 3 और 3 30 में भी 3। फिर इसमें देखिए 5 से 5 1 1 1 5 5 इज 5, फिर 1 या 5 या 5 या 5। 6 में देखेंगे तो यहाँ 2 and 6 is 2, 2 and 6 is 2, 2 3 and 6 is 3, 1 6 2 3 and 6, again 1 2 1 5 2 10 5 10 and 1 1 3 5 1 1 3 5 3 5 15 15 and last is 1 2 3 5 6 10 15 or 30. This is the table for multiplication. This is the table for multiplication. अब आप इसमें भी वही क्रम विनिमय नियम कि 2 और 1 का अगर अपन देखें तो 1, 2 और 5 का देखें तो 1, 2 और 6 का 2, तो 6 and 2 का अगेन 2 होगा। तो दिस इज द SCF between A into B. तो दिस इज द क्रम विनिमय प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड कर रही है हमारी कि फॉर द मल्टीप्लीकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्रम विनिमयता इसमें लागू होती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑल्सो यू कैन सी इन दिस टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देन आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री अगर मुझे निकालना है तो हम लोग इसको अगेन इसमें एक टेबल बनाता हूं मैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। दिस इज द टेबल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। ए डैश जो हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो हमारे पास क्या है, ए डैश निकालना है। ए इज 1 2 3 5 6 10 15 and 30. A dash divided by A is 1, so this is your 30, this is 15, this is 10, this is 6, this is 5, this is 3, this is 2 or this is 1. So this is your complementary function। जैसे जो हमें complementary function निकालना है वो A dash equals to 30 by A, तो this is your complementary table। So for this function, for this non-empty set for B, all the 5 properties are hold. So this set is a Boolean algebra which holds commutative property, distribution law, then third number जो property हमारी वो है हमारी complementary function, सभी इसमें लागू होती है। तो ये सभी अभिगृहित ऑक्सिम्स को प्रूव करती है, तो इसलिए अपने पास ये बुलियन अलजेब्रा है। तो जब भी बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज आपको इसमें प्रूव करनी होगी और उसके साथ ही हमें आगे क्वेश्चन भी इसी प्रॉपर्टी से होल्ड करने होंगे। थैंक यू।